Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new day, a new episode where we are going to talk about a very trending, interesting and very useful and very important topic. Get to the video. So what is manifestation and how does it work? Basically, as I told you that manifestation is a magic. You can take it as a magic. You might will feel that how is it possible? And you won't believe in that, you won't trust that something happens like that, but it still happens. It's exactly like कि कोई भी अगर चीज है एनर्जी एग्जिस्ट होती है कि नहीं, अगर आप नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी एग्जिस्ट होना बंद कर देगी. इट स्टिल एग्जिस्ट. एक ह्यूमन बर्थ से बड़ा मैजिक इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो आई फाइंड इट सो मैजिकल एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मैजिक. कैसे एक बच्चा पहले मम्मी अपने मम्मी के पेट में आता है और फिर उस तरह से बड़ा होकर बाहर आता है. That's really fascinating and I can't understand. I know the process completely, of course, but I still don't understand how does that work? How does that happen? It is a magic more than anything else. So just like that, there are so many other magics. Manifestation is a magic and which is definitely existing. अब आज से कई सालों पुराने 100 साल पुरानी बुक भी कोई उठा के देखोगे और उसमें भी जाके पढ़ोगे तो दूसरी तरह के शब्दों में लिखा होगा, लेकिन ये डेफिनेटली लिखा होगा something about the manifestation. The words can differ, but basically it is the same thing. Now, for doing anything with a manifestation, for trying, for experimenting, for using it for your benefit, you need to understand it and you need to understand it in the correct way. So I am trying here to help you because there are so many new things which even I have discovered about manifestation. ऐसा नहीं होता है, people think that thoughts become thing. Basically manifestation का definition तो यही होता है कि thoughts become thing. जो आप सोचते हो वो हो जाता है. Now but अभी आपको समझना पड़ेगा कि thoughts क्या, एंड जस्ट दैट आपने सोचा हो गया, ऐसे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. एट द सेम टाइम थॉट्स आपके कितने होते हैं, आपके थॉट्स कितने स्कैटर्ड होते हैं, कितने बिखरे से होते हैं, कितने सारे होते हैं. यू डू कैन यू इवन हैव अ कैलकुलेशन? हिसाब किताब रख सकते हो एक दिन में कितना क्या क्या सोचते हो, तो उसमें से कितनी चीजें मैनिफेस्ट होंगी, कितनी नहीं होंगी, कब मैनिफेस्ट होंगी. देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली operate in a structured way to understand and use it for your benefit. So it's very important and that's what I'm going to talk about today, that for understanding and for making your thoughts from bringing your thoughts into reality, you have to work on it. Very important rules of manifestation. अगर आपका manifestation काम नहीं कर रहा है तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पहली चीज जो है वो है कि you need to be sync, like your energy alignment. What is alignment? आपका जो alignment होता है ना, जैसे आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, ओके, एंड आप क्या कर रहे हो, एक्शन, तीनों चीजों का अलाइनमेंट होना चाहिए. अगर आप सोचते कुछ और जा रहे हो लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है और आप एक्शन कुछ और कर रहे हो, तो वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी. यू नीड टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू अलाइनमेंट. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, जैसे आप सोचते हो कि आपके मन में ऐसा है कि यार पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट चीज है, इतनी इजीली आएगा ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास, तो होगा कैसे. बट इन योर माइंड यू वांट abundance, you want lot of money, and at the same time आप ये सब सोच तो रहे हो पर आप अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी एक्शंस कुछ नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए. आप अपना रूटीन कर रहे हो पर आप उस चीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट एट ऑल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग टू डू what you want to do, what you want to make, reality. तो फिर इट विल नॉट वर्क. हाउ विल इट वर्क, टेल मी. सो आपको ये तीनों चीजों को सिंक करना बहुत जरूरी होता है. Second, for example, if we take an example of love, a lot of people who want love in their life, they are missing love, but at the same time उनके अंदर कहीं बैठा हुआ है. अब वो जो अंदर बैठा जो बिलीफ सिस्टम है, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी होती है कि वो क्यों होता है. हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है. हमारे बिलीफ सिस्टम का मतलब उसके पीछे चीजें होती हैं हमारे बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ. हमने बचपन से क्या देखा है, हमें लोगों ने कैसे ट्रीट करा है, हमारे आसपास के लोगों ने हमसे कैसी बातें करी है, ऑल दिस मैटर्स. ओके, तो अगर बचपन से आपने जो भी ट्रीटमेंट देखा है या जो भी आपके आसपास हुआ है, उससे आपको ऐसा है कि यू आर लेस, यू आर नॉट सफिशिएंट, यू आर नॉट इनफ एंड पीपल डोंट लव यू, यू आर नॉट लवेबल, तो फिर आपको पहले अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा. वो भी ठीक हो सकता है, डेफिनेटली एवरीथिंग इज डूएबल एंड वर्केबल. देयर इज नथिंग विच इज नॉट, बट यस यू हैव टू डू इट. बिना करे बैठ के सोचना और फिर नहीं हो पा रहा है और फिर उस बात पे क्रिप करना कि नहीं नहीं ये सब तो झूठ है, ये तो होता ही नहीं है, सो दैट्स अ फुलिशनेस, राइट. ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है. एनी विच वेज अगर आप नहीं बिलीव करते हो और आप उस चीज को डिनाई कर देते हो तो किसी का कुछ नहीं जा रहा है.
राइट? आपका लॉस है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस है। तो बेसिकली यू नीड टू ट्राई थिंग्स, यू नीड टू ट्राई थिंग्स, एंड इफ यू आर ट्राइंग एंड इट्स नॉट वर्किंग, यू नीड टू कीप चेंजिंग योर वेज, दैट कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ हम ऐसे ही करते हैं ना। हम लाइफ में कोई बेसिक सा सिंपल काम है जो आप जिसको बिलीव करते हैं, जैसे आपने कोई डिश बनाई घर पे खाने की, और उस खाने की डिश बनाने में आपने ट्राई करा कुछ नया, तो फिर आप उसको टेस्ट करते हो ना, नमक ज्यादा है कम है, अच्छा और मिला लो, नहीं इसको थोड़ा और रोस्ट करना, नहीं तो लाइक वाइज यू नीड टू ट्राई थिंग्स इन एवरी थिंग। जो भी सब्जेक्ट को आप लर्न करते हो, जो चीज जितनी डीप होगी वो उतना अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर, मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सी, इट्स द फैक्ट, आप जैसे वाइब्रेशन रखते हो वो अट्रैक्ट करते हो। आप कई बार सोचते होगे ना कि मेरी लाइफ में आसपास ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, मेरी लाइफ में कई सारे लोग बोलते हैं यार मेरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। ट्रस्ट मी, ये सब चीजें क्या होता है कि कोई भी इतना डीप में जाके उन सब चीजों को चेक नहीं कर रहा है, R&D नहीं कर रहा है उसके ऊपर कि इसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, डीप डाउन अगर आप जाके चेक करोगे तो आप खुद उन सब चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। वेरी सिंपल। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड वंस यू एक्सेप्ट इट और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तब आप उस चीज को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। तो बेसिकली if you are not able to do things, it's the only reason that you are not doing the right thing or right way. So now, if you want to attract in any field of your life, for example, you want to attract love, you want to attract abundance, you want to attract some specific job, it need not be a very big thing. It could be a very small thing कि मुझे यार अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने, अच्छी फीमेल फ्रेंड्स अट्रैक्ट करनी, मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और आपको उसको अट्रैक्ट करना है। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने अंदर से, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ यार, खुद के साथ अकेले में ऑनेस्टी से आपको समझना पड़ेगा कि आप अंदर से क्या सोचते हो, कि आप एक्चुअली ये कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो पर अंदर आपके ऐसा है कि यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट केपेबल ऑफ इट, एंड पीपल विल नॉट लव यू, तो इट विल नॉट हैपन। सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। हाउ कैन you work on your belief system? That you have to really sit down, write down what's going in your head deep down, preferably if you are somebody who can meditate, क्योंकि I have seen one thing, it's a magic that आपकी बहुत सारी थॉट्स जो आपको अपने बारे में पता ही नहीं होता है कि मेरे मन में ये भी है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरी जो होती है ना, दे वर्क वेरी सेपरेटली, एंड ट्रस्ट मी, आपकी जो अनकॉन्शियस मेमोरी होती है ना, इट्स अ साइंस नाउ एंड इट्स वेरी ट्रू। एंड आप अनकॉन्शियस मेमोरी में क्या चल रहा है, क्या रखा हुआ है ना, वो आपको वहां जाके देखना पड़ता है, और वहां जाने के लिए आपको आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो है मेडिटेशन। तो अगर आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ शांति से अकेले में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी सोच रहे हो, जिस टॉपिक पे सोच रहे हो, उस पे आपका अंदर क्या थॉट है, आप उसमें बिलीव करते हो नहीं करते हो, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो। और एक और चीज होती है कि आप अपनी बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ को जर्नल करो, आप लिखो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो जो याद आता है आप बैठ के याद करो और लिखो। जब आप लिखोगे ना, तो लिखने से आपको क्लैरिटी आएगी। सिर्फ सोचने से क्लैरिटी नहीं आती है, माइंड जंप करता रहता है, दैट्स इट। एंड समटाइम्स हम ओवर थिंक कर जाते हैं, लिखने से क्लैरिटी आती है। लेट मी टेल यू, पीपल आर वेरी वेरी आलसी, इंक्लूडिंग मी। हम लोग बहुत आलस करते हैं, हम लिखते नहीं है, हम सोचते हैं लिख लेंगे, कोई नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, फोन पे लिख देते हैं ये। नो, यू हैव टू टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड राइट डाउन। इट मैटर्स सो मच। तो वंस यू विल राइट डाउन, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट द क्लैरिटी कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है और उसको कैसे ठीक करा जाए। पहले तो गड़बड़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने बचपन से लेकर अभी तक के सारे इंसिडेंसेस को रिकॉल करोगे, मे बी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लव, देन यू माइट विल यू नो लाइक होता है, जैसे कई बार किसी लोगों के बहुत सारे पास में खराब रिलेशंस रहे हैं, लड़की है तो उसको लड़कों ने मिसट्रीट करा है, चीट करा है, तो उसके अंदर से ये फीलिंग, हर फीलिंग आप सोच के नहीं लाते हो अपने अंदर, हर बिलीफ सोच के नहीं आता है। कई बिलीफ ऐसा, कोई बिलीफ ऐसे भी आ जाता है जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुए लाइफ में और वो आ गया है अंदर, क्या करोगे, यू कांट हेल्प इट, राइट? इनसिक्योरिटीज भी ऐसी आती हैं यार। एक बहुत बड़ी सच है कि हमारी लाइफ में हमें बचपन से जिस तरह से रखा गया है ना, बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि अगर तुम अच्छे हो, अगर तुम सबकी बात सुनते हो तो तुम अच्छे हो, तुम सबकी बात नहीं सुनते हो तुम अच्छे नहीं हो, तुम बड़ों का कहना मान के चलते हो, जो वो कह रहे हैं वही करोगे तो तुम अच्छे हो, तुम पढ़ोगे तो तुम अच्छे हो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं अच्छे हो, तुम ये वाले ड्रेसेस पहनोगे तो यार, सो मेनी फिल्टर्स आर ऑलरेडी इन इन योर हेड। इसमें से कुछ भी सच नहीं होता है, ओके? ये सब कंडीशंस हैं, ये सब कंडीशंस है जो हर फैमिली में अलग हो सकती है, राइट? क्योंकि
कोई बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, मुस्लिम फैमिली में बोल दिया जाएगा बचपन से मे बी कि बुर्का पहनोगे तो अच्छे हो, नहीं पहनोगे तो बुरे हो, करेक्ट? वेर इंडियन फैमिली में तो ये सब इट्स नॉट गॉड्स रूल, ओके, इट्स बेसिकली ह्यूमन मेड रूल विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट फैमिलीज इन डिफरेंट कल्चर्स. सो बेसिकली यू नीड टू सी कि आपकी क्या कंडीशनिंग है, आपको उस कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा, और वो सारी कंडीशनिंग के हिसाब से आपका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है. तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं अलाइंड हूँ, क्या मैं जैसा सोचती हूँ वही बिलीव करती हूँ और उस हिसाब से मैं एक्शन कर रही हूँ. अगर आप वे इन 3 चीजों को अलाइन कर लोगे, देन यू विल सी how soon, how smoothly, how easy you can manifest everything, anything. And I'm not saying it's so easy. You might will see the toughest thing which everyone has to do is work on yourself. इससे टफ कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको हर चीज को हैंडल करना पड़ता है, आपके थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को, कंडीशनिंग को, एवरीथिंग, बट यू हैव टू डू इट. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, हैव टू हील. अगर आपके पुराने ट्रॉमास हैं बचपन के, बड़े होने के बाद जो भी है, बट यू हैव टू हील योर सेल्फ. Healing yourself is very very important before you know jump for manifestation or you start. जब आप चीजों को जर्नल करते हो ना यार, कुछ मैजिक है. आई कांट प्रोबेबली टेल यू द एग्जैक्ट लॉजिक अबाउट इट, बट यस, जब चीज अंदर है ना, हमको भारी लग रही है अंदर है, पर आप जब लिख देते हो ना, कुछ नहीं करा. इवन पता है, जिसने आपको प्रॉब्लम दी है, सपोज देयर हैज बीन अ पर्सन जिसने आपको ट्रबल करा है, हर्ट करा है, मिसट्रीट करा है, आप उससे जाके बात नहीं भी करोगे, कोई जरूरत नहीं है. कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम उससे बात करके उससे क्लैरिटी आएगी. नहीं, वो सिर्फ हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि हम बात करेंगे तो क्लैरिटी आएगी. नो, आप सिर्फ उस चीज को अपने अंदर से निकालो, बाहर निकाल दो, दैट्स इट. तो अगर आप सिर्फ उसको लिख लेते हो, जर्नल कर लेते हो, आप उसको अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हो. दैट्स वन वे ऑफ हीलिंग. एंड सेकेंड वे, देयर इज अ टेक्निक विच इज होपोनोपोनो टेक्निक. आई डोंट नो यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, बट आई रियली वुड लिंक दैट लिंक, यू नो, जो एक प्रेयर, एक 4 लाइन्स का प्रेयर है, बहुत सिंपल है प्रेयर, 4 लाइन्स का प्रेयर है, और वो चलता, आप उसको प्ले करोगे, इट्स एन ऑडियो, यू जस्ट हैव टू प्ले इट एंड यू हैव टू सिट डाउन, रिलैक्स एंड कीप रिपीटिंग दोज 4 sentences. You can do it in different way. You can also put your hand on your heart sometime and, you know, just do it. Why is it done? Actually it is kind of, you are doing, see, the sentences are: I am sorry, please forgive me, थैंक यू, आई लव यू. सो ये जो 4 sentences हैं, आप ये sentences अपने आप से बोल रहे हो. You know, this is a concept, you know, you are not one person, you are doing things consciously, and lot of things have happened and gone in your unconscious. So basically you need to keep healing and working on your unconscious, because most of your life will depend on your unconscious memories, your unconscious thought process, your unconscious experiences, lot of things like that. And it's a, like, you know, very deep stuff. So for the moment, what I want to tell you is you have to heal yourself, and to be able to manifest and be clear in what you want, to clear and create more of belief systems which are in your favor. And this technique will help you do that, and this technique really work. अगर आप इसको 7 days try करके देखोगे, you will see the difference. So you actually have to heal yourself, and you have to just sit down, closed eyes, and play this record. If you want to do it 45 minutes, well and good. अगर आप उसको 15 मिनट, 20 मिनट, जितना जितना टाइम उसको, पर उसको रेगुलरली करना बहुत जरूरी है. दिन में 2 बार भी कर सकते हो. You will see the difference. I'm telling you, you will 110% see the difference in yourself, and you have to do it, and you have to use it, and then you will see how things change in your life, how you understand, and, you know, how you manifest. So this was basically about, I want to talk about that, what could be the reasons that you are not able to manifest. So that's, these are the major reasons. And in next episode I would want to talk about more things like affirmations and how can you manifest, what are the process to manifest. There are so many things about it is so exciting and magical. So you need to be, and मेरा एक बहुत important request है यार, please इन सब चीजों को काम समझ के नहीं करो. ये सबसे important चीज हो सकती है आपकी लाइफ, and do it with excitement. Your emotion of excitement matters a lot here. So please take care of that. That's all. I am very sure it's going to help you. Just do it sincerely for yourself, with yourself. That's all for this video. Thank you. Love you. Take care. Bye.